Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear. So, how's the studies going on? Everything well? Yes, ma'am. Fine. Good. Yes, ma'am. Fine. That's good. Good, good. That's good. Okay, in the previous class, right? वाइंड अप करते हैं आपका ये चैप्टर और फिर उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे. Now let's talk about this. Just a second, madam. MR6. Okay, guys. Right. So we were talking about ecosystem. Right. I hope सबने organism population complete कर लिया होगा. Right. And ecosystem भी साथ साथ पढ़ लिया होगा. Right. तो let's start with the topic. So हम क्या succession कर रहे थे last time पे? Right. Yes. Everyone. What the succession is? Succession क्या होता है? फटाफट से थोड़ा सा meaning समझाओ मुझे. Right. What the succession is? Succession किसे हम define करते हैं? If I will say succession, तो हम क्या कहते हैं? Succession क्या है हमारे पास? Is it a process of species change in species composition? Right, a gradual and a predictable change in the species composition में जो change हो रहा है, gradual change है, एक predictable change है, right, which is being there, जो हमारे पास occur करता है, right, जिसके basis पे हम ये define करते हैं कि this gradual and predictable change will leads to the development of a community which is in equilibrium with the environment. And what's the name of the community which is in equilibrium with the environment? जो environment के साथ exact equilibrium में आता है, क्या नाम होता है उस community का? Climax, very good. So that's being the one, that's the climax community, which is being there in a complete equilibrium with the environment. Whereas the first community which start developing over an area, right? The first community जो develop होती है उस area पे, जो inhabit करती है उस area को, right? उसे हम क्या define करते हैं? That's being called Pioneer as pioneer community. Pioneer community. Right, pioneer community. Any example of the pioneer community? अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कोई specific example pioneer community से related? नहीं, हम क्या कहते हैं pioneer community? Lichen, very good. So lichen is being the one which is one of the pioneer community which is being observed, right? जो हम observe करते हैं, right? तो हमने कहा pioneer community is being the lichen in the case of the Zirac succession, followed by number of the transitional community, number of the serial communities are going to follow them up, right? और उसके बाद एक final community हमारे पास setup होता है which is being called as the climax community, हम उसे define करते हैं, right? तो we says the first one is the pioneer community, फिर उसके बाद climax serial communities, transitional community और finally हमारे पास आ जाता है climax community, जिसके थ्रू हम कहते हैं पूरा हमारे पास सक्सेशन का प्रोसेस रन करते हैं, राइट? ओके, नाउ व्हिच इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ स्पिंडल शेप इन नेचर? व्हिच इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ स्पिंडल शेप इन नेचर? स्पिंडल शेप कौन सा है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड? यस गाइस, सिंपल वन. व्हिच इकोलॉजिकल पिरामिड इज स्पिंडल शेप इन नेचर? स्पिंडल शेप पिरामिड हम किसे लेके चलते हैं? सोचो. Aquatic, no, forest not biomass. Forest ecosystem. हाँ, forest ecosystem, absolutely correct. Right, हमने कहा इसको basically in the case of the forest ecosystem we found that is going to be the spindle shape in nature. वो भी किस केस में हम लेके चलते हैं? aquatic भी नहीं बेटा. Right, we will take it as the spindle shape in the case of forest ecosystem while doing the process of predation. जब predation का process कर रहा होता है तब हम लेके चलते हैं ना, लेकिन जब parasitism कर रहा था तो हमने क्या लिया था? उसको inverted shape लिया था, pyramid of number. In the forest ecosystem, pyramid of number is being taken up like this. Right, the pyramid of number को हम यहाँ पर लेके चलते हैं. Right, fine. Right, अच्छा. Which biogeochemical cycle do not show any respiratory losses in the environment? Which biogeochemical cycle do not show any respiratory losses in the environment? Phosphorus cycle. Phosphorus cycle. Can I say nitrogen as well? Nitrogen का भी तो कोई respiratory loss नहीं है ना environment में. राइट, तो जहाँ फॉस्फोरस आंसर हो सकता है वहाँ नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में सेडिमेंट्री दे दे तो आंसर फॉस्फोरस आ जाएगा, अगर गैशियस दे दे तो हमारे पास आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा. राइट, गॉट दिस पॉइंट? राइट, तो ये हम बेसिकली यहाँ पर डिफाइन करते हैं. राइट, ओके. व्हिच न्यूट्रिएंट साइकिल इज द स्लोएस्ट साइकिल? व्हिच न्यूट्रिएंट साइकिल इज द स्लोएस्ट साइकिल एंड टेक अ लॉट नंबर ऑफ इयर्स टू कंप्लीट? Phosphorus cycle. Phosphorus cycle, बिल्कुल. तो हमने कहा sedimentary nutrient cycle और we will say the phosphorus cycle is being one of them which is the slowest one, right? क्योंकि उसको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि weathering का प्रोसेस इन्वॉल्व करे तो obviously it is going to be more time taking in nature. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करेंगे so as to go for the complete process of the management कर सके इसके अंदर. Right, good. Right, next afterward इसी के बाद
Right. During population interaction, which interaction can lead to reduction in competition in an area? Which interaction can lead to reduction in competition in an area? Think about it. Which interaction leads to reduction in competition in an area? राइट कौन सा ऐसा इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से आप कंपटीशन को कहोगे कि हाँ रिड्यूस हो चुका है आपका कंपटीशन, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अब इस टाइम पे? यस, कैन वी से प्रेडेशन? राइट, अगर प्रेडेशन है, अगर प्रेडेटर प्रे पे फीड कर रहा है तो प्रे के अमंग और उसी के साथ साथ प्रेडेटर के अमंग कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना, तो इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन फिनिश हो जाएगा बेस्ड ऑन दैट, जिसकी वजह से हमने कहा प्रेडेशन इज बैक बीइंग दैट इंटरेक्शन जिसकी वजह से आप कंपटीशन को रिड्यूस कर सकते हो। राइट, यू कैन हैव द रिडक्शन इन द कंपटीशन टू बी देयर, कंपटीशन का रिडक्शन हो सकता है। राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? राइट, एवरीवन कंप्लीटेड टिल दिस टास्क? अच्छा, उसी के बाद अब लास्ट वन। Right, if you will say the population is expanding capacity of the environment, right, what type of the growth model it will follow? What type of the growth model will it follow? Logistic, very good. Right, we will say logistic growth model. बिल्कुल ठीक है, logistic growth model it's going to be follow up. Right, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा कि it is going to work, ये वर्क करेगा तो सही, लेकिन किसके अंडर करेगा? हमारे पास अंडर द कैरिंग कैपेसिटी के अंडर करेगा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के अंडर करेगा। दैट्स व्हाई वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। गुड, राइट, अब आते हैं अब यहाँ पर आपका इकोसिस्टम वाले पार्ट पे, एंड लेट्स कंप्लीट दैट चैप्टर। ज़राक सक्सेशन हमने कर लिया था, हाइड्रैक सक्सेशन पूरा करेंगे अब। उसी के बाद आपका इकोसिस्टम सर्विसेज करके वी विल वाइंड अप द होल यूनिट, राइट, होल चैप्टर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द बायोडाइवर्सिटी and conservation. Just a second. आपको मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था ना इकोसिस्टम का पूरा, उसी से पढ़ाती हूँ। Okay, this is what we have done. Yes, हमने प्रोसेस कर लिया था। Have I told you about the process for succession ना? Yes ma'am. Good, तो जरा Yes, ma'am. कर चुके थे। अब आएंगे हम हाइड्रैक सक्सेशन में। बहुत ध्यान से पढ़ना हाइड्रैक सक्सेशन क्या है हमारे पास, और साथ साथ नोट करते जाना एवरीवन। राइट, नाउ हाइड्रैक सक्सेशन इज बीइंग द वन जहां पर हम चेंजेस करने वाले हैं बेटा ओवर द एक्वाटिक हैबिटेट। ओवर एक्वाटिक हैबिटेट वी आर गोइंग, यही पीडीएफ मैंने आपके साथ पहले शेयर भी कर दिया है इकोसिस्टम का। राइट, तो हमने कहा यहाँ पर एक्वाटिक हैबिटेट के ऊपर जो हम ग्रेजुअल चेंजेस कर रहे हैं, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स पाइनियर कम्युनिटी की तरह प्रेजेंट है, राइट, वो चेंज होंगे, वो इवॉल्व होंगे, फॉर्मिंग अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे। सो दीज रिमेंबर इस वन एक्वाटिक हैबिटेट आपको लेके चलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें स्पेसिफिकली फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड या स्टिल वाटर को लेके चलोगे, तो यू विल टेक द फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड और द स्टिल वाटर, जहां पर वाटर में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यू विल टेक दैट इन कंसिडरेशन। राइट, तो उस सक्सेशन को आप नाम दोगे हाइड्रैक सक्सेशन। राइट, नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज द फाइटोप्लैंक्टन। तो सबसे पहला आपने पाइनियर कम्युनिटी को डेवलप किया, राइट, दैट ग्रुप इज बीइंग डिफाइंड एज द फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास? तो हमने कहा फाइटोप्लैंक्टन्स आर द माइन्यूट एल्गल पार्टिकल्स लाइक द ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, डायटम्स, इनके पार्ट्स हो गए, राइट, इनके सॉरी मेंबर्स हो गए। तो दे आर बीइंग द वेरी माइन्यूट एल्गल पार्टिकल्स व्हिच आर बीइंग प्रेजेंट, जिनका मेन काम क्या है, मेन फोकस क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। Now, the increased population of phytoplanktons leads to the increase in the rate of the photosynthesis of the water body. जहाँ water body का photosynthesis बढ़ेगा, वहीं पर हम कहेंगे उसकी productivity भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। तो there is an increased productivity of the ecosystem as well. अब अगर हम छोटा सा एक लॉजिक समझे, एरो टू एरो समझते रहना। हमने कहा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ, फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म होने की वजह से प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की बढ़ी। जब इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उसकी वजह से हमारे पास जू प्लैंक्टन की भी ग्रोथ वहां पर शुरू हो गई, क्योंकि जब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ रहे हैं तो उससे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल अपने आप आ जाएगा, वहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा उस तरफ, क्योंकि फूड अबंडेंट हो जाएगा उसके लिए।
राइट, जूप्लैंक्टन जस्ट फीड ओवर देम, राइट, एंड जूप्लैंक्टन की पॉपुलेशन भी बढ़ी। अब धीरे धीरे जब फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बढ़ रहे हैं हमारे पास, स्टिल स्मॉल स्मॉल, अगर एंड्स में हम देखें यहाँ पर, अगर हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आर इंक्रीजिंग, राइट, तो उनके इंक्रीज होने की वजह से, राइट, देयर इज बीइंग द प्रोसेस, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि आपका इनका एक्यूमुलेशन ऑर्गेनिक मैटर का बढ़ जाएगा। कब? जब वो डेब्रिस बन जाएंगे, व्हेन दे विल बिकम द डेब्रिस। देखो हमारे पास टास्क है, बहुत ध्यान से इसमें क्लियर करना, टास्क है कि हमारे पास एक प्लेन वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी को किसी तरीके से we have to convert it into the land area, और एक ऐसे लैंड एरिया में कन्वर्ट करना है जहां पर सॉइल होगी, जहां पर फॉरेस्ट ग्रो कर पाएगा। तो वाटर बॉडी के अंदर तो सबसे ज्यादा वाटर है, सॉइल का कंटेंट तो बहुत ही कम है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि उसके अंदर भी सॉइल का कंटेंट इंक्रीज किया जाए, व्हाट हैज टू बी डन इन दैट, राइट। तो हमने कहा बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जितने ऑर्गेनिजम्स को आप ग्रो कराओगे, जब वो ऑर्गेनिज्म आपका डेब्रिस बनेंगे, तो डेब्रिस बन के वो ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन कॉज करेंगे, राइट, और उस एक्यूमुलेशन की वजह से, उनका एक्यूमुलेशन होने की वजह से डिकम्पोजिशन का रेट वहां बढ़ेगा, और जब डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन के रेट बनने की वजह से ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा, मींस मोर एंड मोर लेयर ऑफ द सॉइल विल बी फॉर्म ना, क्योंकि सॉइल के वेदरिंग, अगर आप वेदरिंग नहीं भी करा रहे हो, आप डायरेक्टली ये प्रोसेस कराओगे डिकम्पोजिशन, तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल लेयर इन देयर, वहां पर आप सॉइल लेयर की डेवलपमेंट कराओगे, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने कहा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ गया और सॉइल फॉर्मेशन आपका इंक्रीज हो गया। तो आपके पास यही बेटा देखो प्रोसेस है कि आपके पास वाटर बॉडी है जिसमें बेंथिक और बॉटम जोन है, इस बॉटम जोन को आपको बढ़ाना है, सॉइल का लेवल आपको बढ़ाना है, वाटर का लेवल आपको कम करना है, कम इन सेंस वाटर को आपको सॉइल के अंदर परकुलेट करा देना, सारा का सारा पानी गायब नहीं कर देना, उसको सॉइल में परकुलेट कर देना, ताकि एक फॉरेस्ट एरिया, एक लैंड एरिया और एक मेसिक एरिया हमारे पास बन सके, राइट। समझ आया सबको पॉइंट, राइट। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास कौन ग्रो हुए, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने के लिए प्रोडक्टिविटी जब बढ़ी इकोसिस्टम की, तो कौन ग्रो हुए हमारे पास, जूप्लैंक्टन, बोथ ऑफ देम व्हेन बिकम द डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर इज रेडी टू convert them into the inorganic forms के अंदर, that is the process of decomposition, right, where the main member are the bacteria and fungi in that area, and in that specific area the main type of the fungi which is being growing up, right, जो हमारे पास फंगस और बैक्टीरिया मेन टाइप के ग्रो कर रहे हैं, उनका मेन काम यही है कि आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ाएं, सॉइल की फॉर्मेशन को बढ़ाएं, ताकि सॉइल का लेवल बढ़े, वाटर का लेवल कम हो जाए, और उसी के साथ साथ वाटर सॉइल के अंदर जितना भी है वो परकुलेट कर जाए सॉइल में, राइट, सो दैट द फॉरेस्ट एरिया कैन बी डेवलप्ड। पहली स्टेज डन है बेटा सबकी, सेकंड पे आ जाए, राइट। सेकंड स्टेज इज, अब आपने क्या किया, नीचे की तरफ आपने डेब्रिस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से एक चीज और भी तो होती है कि न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं वो भी बेसिकली क्या करेंगे हमारे पास, राइट, दे आर आल्सो गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म उनको यूज करना शुरू करेगा। तो अब मेरे पास क्योंकि सॉइल की भी फॉर्मेशन हो रही थी, तो मुझे सॉइल को वहां पर एक साथ जो है पूरा का पूरा स्टैगल अप भी करना, मतलब वो वहां पर सॉइल आपका कनेक्टिव वे में रहे। तो उसके लिए मुझे ऐसे प्लांट्स चाहिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स ना हो, राइट, रादर ऐसे प्लांट हो जिनके पास रूट्स हो, क्योंकि अगर उन प्लांट के पास रूट होगी तो रूट विल पेनिट्रेट इनसाइड द सॉइल जोन के अंदर रूट पेनिट्रेट करेगा, और जब रूट पेनिट्रेट करेगा सॉइल जोन में, बॉटम जोन में, तो उनके पेनिट्रेशन की वजह से, राइट, उस सॉइल जोन में पेनिट्रेट होने की वजह से प्रोडक्टिविटी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी एक्वाटिक हैबिटेट की, राइट, और जहां आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई उसी के साथ साथ आपने जब इनका डेब्रिस बनाना शुरू किया तो अपने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन साइड टू साइड हाई करते गए। तो ये दोनों अलग प्रोसेस है, राइट, दोनों को सेपरेटली डील करना है। देखो हम कह रहे हैं हम प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ा रहे हैं बेटा, वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी सो दैट अदर ऑर्गेनिजम्स बड़े आराम से ग्रो करें, प्लस उसी के साथ साथ उस एरिया का स्टैंडिंग क्रॉप जो है पूरा का पूरा वो इंक्रीज हो सके। और अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ रहे हैं, तो वो बेसिकली ड्राई आउट भी करेंगे, डेब्रिस भी बनेंगे, बेस्ड ऑन दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो सॉइल फॉर्मेशन भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बट नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग वन आफ्टर टू अनदर, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। जैसे कि प्लांट स्टेज इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज अ सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। अब हमने कहा हमने सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज बना ली, राइट, तो सबमर्ज प्लांट स्टेज जब पूरी तरीके से प्लांट जो है हमारे पास सबमर्ज होगा, तो नेक्स्ट है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, राइट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज है, मतलब ऐसे आपको यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे विच आर फ्री फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस पे बड़े आराम से फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट इसके सबमर्ज भी हैं, कुछ प्लांट इसके प्रॉपरली फ्री फ्लोटिंग भी हमारे पास प्लांट्स मिलेंगे, राइट, जो बेसिकली क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन का
डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, दैट इज प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस तो बढ़ ही रहा है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी बढ़ रहा है हमारे पास, राइट। लेकिन अगर खुद सोचो आपके कोई ऐसे प्लांट हो गए जो वाटर से बाहर आ गए, राइट, एंड इफ दे मूव आउट ऑफ द वाटर, वाटर से अगर बाहर आ चुके हैं, तो बेस्ड ऑन दैट, राइट, इनके अंदर बेसिकली हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, बिकॉज ऑफ दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा हमारे पास, और ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हाउ द ट्रांसपिरेशन लॉसेस इंक्रीज, कैन एनीवन टेल मी? Madam, please scroll down. Okay, I scroll up. Fine. How come transpiration losses increases, guys? Tell me that. सोचो थोड़ा सा. Decomposition lead to soil formation, leaf will be exposed to air. Yes, exactly. राइट, देखो अब हमने कहा यहाँ पर लीव विल बी एक्सपोज टू एयर, अभी बताती हूँ अंकुर वाला क्वेश्चन भी कि ट्रांसपिरेशन लॉस आपके बढ़ जाएंगे। देखो बेटा, हमने जो 3 स्टेजेस बनाई हैं, मुझे इन स्टेजेस में 1 by 1 सॉइल का लेवल धीरे 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 इंक्रीज करना है, राइट। और हम ये जानते हैं बेटा, जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करोगे, राइट, तो एक पार्शली अनडाइजेस्टेड वेस्ट में मिलेगा और एक आपका ह्यूमस मिलेगा। एंड ह्यूमस जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट इज द मिनरल्स। जो मिनरल्स होंगे हमारे पास पार्ट, वो तो अनडिसॉल्व मिनरल्स के होंगे, राइट। वाइल इन द कंपैरिजन जो हम यहाँ पर देखें, जो पार्शियली हमारे पास degenerated है, right, they are being the one which are forming the humus, because other microorganism when grow over it, तो ultimately वो क्या start करेंगे, humification and mineralization का process with the release of that complete decomposition form and forming the soil. Clear हुआ अभी? Yes everyone, 3 stages everyone done? Note हो गए हैं साथ साथ? आगे बढ़ जाऊं? यस, गुड, ओके डियर। अब देखो, अब हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास फ्री फ्लोटिंग प्लांट बन चुके हैं, प्लांट्स आर बीइंग फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, राइट। उसके बाद अब अगर सोचो आप थोड़ा सा कि जो पानी है हमारे पास, जो जितने भी प्लांट्स आ गए, चाहे फ्री फ्लोटिंग है, चाहे सबमर्ज है, चाहे फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, इन सब के आने की वजह से वाटर हमारे पास कैसा हो चुका है, वाटर बिकम स्वैम्पी नाउ, क्योंकि वाटर में सॉइल पार्टिकल्स मिक्स हो चुके हैं, राइट। वाटर हैज अ सॉइल पार्टिकल्स मिक्स विद देम, राइट। उसी के साथ साथ वाटर के अंदर जो प्रॉपर एक्वाटिक वाटर बॉडी में वाटर का कंटेंट था, वो कम हो चुके हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी हमारे पास बढ़ चुके हैं। अब अगर हमने कहा वाटर का कंटेंट कम हो गया, तो वाटर नॉर्मल रहेगा या वाटर स्वैम्पी हो जाएगा? इज इट बिकमिंग स्वैम्पी इन नेचर, राइट। तो हमने कहा वाटर विल नाउ बिकम स्वैम्पी इन नेचर, तो स्वैम्पी वाटर हो जाएगा विच इज बीइंग द रीड, एंड रीड इज एक्चुअली व्हाट बेटा, जब भी हम रीड वर्ड पढ़ते हैं ना, राइट, तो रीड वर्ड हम बेसिकली डिफाइन करते हैं रूटेड प्लांट्स को, एमर्जेंट प्लांट्स को, राइट, जो हम डिफाइन करते हैं। तो एमर्जेंट प्लांट्स हमारे पास बढ़ेंगे, जो उस वाटर बॉडी के अंदर यहाँ पर स्टिक रहेंगे, प्लस ओवर द सरफेस मूव करेंगे, और सरफेस से मूव करके हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, राइट। तो अब हमने यहाँ पर कहा रूटेड रीड स्वैम्प स्ट्रक्चर इज बीइंग, राइट, स्वैम्पी हैबिटेट डेवलपमेंट, स्वैम्पी हैबिटेट को डेवलप करना, with the complete origin of plant is rooted in the soil and emerging over the water surface. Soil में rooted होने चाहिए, लेकिन वहीं पर emerge out कहाँ से करेंगे, water surface से बाहर की तरफ, ऐसे पूरे pack को, right, the complete pack, if you will say that, right, तो इसको हम यहाँ पर basically we say it's being the one which includes all the emergent plants which are having the high productivity and high transpirational losses. कंप्लीट। अच्छा, अब रीड स्वैम्प स्टेट, अगर स्वैम्पी वाटर हो चुका है, तो क्या धीरे धीरे वाटर मार्शी होगा? यस गाइस, राइट। स्वैम्पी और मार्शी में कोई डिफरेंस बताओ मुझे। स्वैम्पी और मार्शी में कोई डिफरेंस? Swampy areas have oxygen availability, but marshy areas don't have. ठीक है, राइट। स्वैम्पी एरियाज आर बीइंग द वन, राइट, जो इतने ज्यादा हमारे पास रिजिड में नहीं जाते, राइट, where we will say, right, the plants which are being growing up have a proper oxygen carrying capacity also, right, are proper rooted in the soil also, right, and going with this के साथ साथ, right, they are being the one which is having high productivity and high transpiration losses, right। अब हमने यहाँ पर define किया, once this is being the case, right, read swamp stage की बात की, अगर हमारे पास, right, complete water का level और ज़्यादा decline करते हैं, then we will say that as the marsh meadow stage, right, but we have the marsh meadow stage, right, where the men,
राइट, विच बीइंग द वन जहां पर हमने कहा टॉल हाइट प्लांट, जो टॉल हाइट लंबे लंबे हाइट के प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं मैनग्रूव्स की तरह, राइट, ओवर द मार्शी हैबिटेट. मार्शी हैबिटेट के याद है एक एडाप्टेशन पढ़ी थी हमने, व्हाट वाज द एडाप्टेशन रिलेटेड टू द मार्शी हैबिटेट? Nematophores. वेरी गुड, निमेटोफोर्स. राइट, वी विल से निमेटोफोर्स आर बीइंग द वन. राइट, तो हमने कहा टॉल हाइट प्लांट है जैसे कि मैनग्रूव्स है, राइट, वो हमारे पास ग्रो करते हैं मार्शी हैबिटेट के अंदर, राइट, एंड द मार्शी हैबिटेट इज बीइंग द वन व्हिच शो द डाइवर्स कंप्लीट हमारे पास इंक्रीज ट्रांसमिशन लॉसेस, right, lead to the water accumulation of organic, right, of matter forming deep lands or the soil give, right. तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसमिशन लॉस भी बढ़ाएगा, एक्यूमुलेशन भी इंक्रीज करेगा ऑर्गेनिक मैटर का, क्योंकि बेटा जब भी कोई एक नई कम्युनिटी बनाती है कुछ पुरानी वाली कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स बेसिकली क्या हो जाता है हमारे पास मूव आउट कर जाते हैं, राइट. सो ऑन दैट बेस हमें ऐसा चाहिए जो एक्चुअल में ट्रांसमिशन लॉसेस को अच्छे से प्रिवेंट कर सके, right. So on that behalf we will say this is being the one which is called as a marshmallow stage, हम इसे define कर. Now उसके बाद हम आ गए यहाँ पर scrub stage पे. Scrub stage का मतलब shrubs with the scattered trees, right. तो हमने यहाँ पर कहा with the shrub with the scattered trees is being there is called as a shrub, right. First provincial community days, right, and along with this last is being the forest community. Yes everyone. मैम scrub stage क्या है? Shrubs with scattered trees. Complete यहाँ तक का point. राइट, तो ये हमारे पास हो गया स्पेसिफिकली हाइड्रैक सक्सेशन. अच्छा आप मुझे फटाफट से बताओ, ड्यूरिंग दिस सक्सेशन, राइट, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लॉसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अक्रॉस द प्लांट? रेट ऑफ इंक्रीजेस, राइट, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा ना धीरे धीरे, राइट. एकदम आप बेस पे लेके गए थे तो -5 तक की वैल्यू यहाँ पर तो प्लस पे आ गए ना. सो इट्स बीइंग द वन जो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, increase, राइट, राइट, तो वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आल्सो इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. Clear? Right. So everyone done till this point? एक बार rate of soil formation बता दिए क्यों increase करना? बेटा rate of soil formation का मतलब decomposition का rate. जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप और बाकी के ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराओगे वहाँ पर. Once they will, right, degrade over there, right, that result in the formation of the humus and the mineralization. ठीक है? और कुछ इसके अलावा? Now, अब इसके अंदर बेटा अगर हम देखें सक्सेशन अगर हम करते हैं तो ओवरऑल फटाफट से मुझे बताते जाना, what supposed to be the benefits of the succession? Right. So if we will say over here, अब अगर हमने कहा बच्चे हमारे पास सक्सेशन के क्या क्या हमारे पास इफेक्ट्स आपको दिखेंगे, व्हाट आर द इफेक्ट्स व्हिच आर देयर फॉर द सक्सेशन व्हिच कैन बी विजुअलाइज्ड इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में क्या क्या इफेक्ट आप देख सकते हो सक्सेशन की वजह से. इज इट गोइंग टू कॉज दी, राइट, आपका मेन कॉज करेगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उस सिस्टम की, डिकम्पोजिशन का रेट उस सिस्टम का बढ़ रहा है. यस और नो? राइट, इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे हमारे पास, राइट. तो हमने कहा सबसे मेन सक्सेशन का इफेक्ट क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन बढ़ गया, एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छे से हो गई, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इंटरैक्ट, राइट. तो ये हमारे पास क्या हो गया, दीज आर ऑल बीइंग डिफाइंड एज दी, राइट, आपके मेन दैट इज जो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरीके सक्सेशन के इफेक्ट्स आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं. क्लियर? अच्छा अब एक याद हो आपको, जब मैंने आपको जे शेप और एस शेप का बताया था,
उस टाइम एक पॉइंट बताया था बेटा पायनियर कम्युनिटी के बारे में, आपने कहा था मैम वो समझ नहीं आया मुझे, 2-3 बार बच्चों ने पूछा था बीच में, राइट, सक्सेशन के बारे में जब वहां पर डिस्कस किया था, राइट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट अगेन, राइट, जो पेप्टाइड सेल है और जो हमारे पास बीइंग द वन जिसमें हमने कहा पायनियर कम्युनिटी इज फॉर्मिंग द जे शेप्ड कर्व, राइट, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी फॉलो करता है ओनली व्हेन इट इज बीइंग प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्पेस, राइट, जहां पर भी आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड स्पेस दे दोगे वहां पर पायनियर कम्युनिटी किसको फॉलो करेगी बेटा, जे शेप को। जैसे ही ट्रांजिशनल कम्युनिटी ने आके इन्वेड कर लिया, क्या उनके बीच में कंपटीशन और रिएक्शन शुरू हो गया, दे बिगिन द कंप्लीट कंपटीशन एंड रिएक्शन, बिकॉज ऑफ व्हिच, राइट, वी हैव टू से दैट दे विल कम अप अंडर द एस शेप्ड कर्व में हमारे पास आ चुके हैं द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। समझ आया पॉइंट, राइट, व्हाट वी स्टेटेड टिल हियर, राइट, तो हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चे, जे शेप का, उसके बाद ऑर्गेनिज्म किसको फॉलो कर रहे हैं, राइट, वी विल से दैट उसके बाद हमने कहा ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू फॉलो द कंप्लीट, राइट, एस शेप्ड कर्व, क्योंकि अब वो किस में आ गए आपके यहाँ पर नॉर्मल रिसोर्सेज में, लाइक यू विल से अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि अगर मैंने एक ग्रुप लिया है, इस पूरे एरिया के अंदर पहले एक ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा था तो पूरे एरिया के न्यूट्रिएंट्स हर चीज उसी को मिल रहा था, राइट, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर, राइट, अगर हम यहाँ पर आगे लेके चलते हैं तो वी विल से उस एरिया के अंदर हमें बाकी के ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, राइट, तो अब बाकी के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे, इट विल फॉलो अप द कंप्लीट लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड वंस इट विल फॉलो अप विद द लिमिटेड रिसोर्सेज तो ऑलरेडी इसकी ग्रोथ हमारे पास कैसी हो जाएगी, इट इज गोइंग टू फॉलो द लॉजिस्टिक ग्रोथ। कंप्लीट यहाँ तक, राइट, समझ आ गया अच्छे से पॉइंट, यस। नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, एक ओवरव्यू इकोसिस्टम का। इससे पहले कोई डाउट बच्चे, एनी स्पेसिफिक डाउट, बिकॉज नाउ वी विल एंड अप द चैप्टर, यहाँ आपका सक्सेशन फिनिश होता है, मींस चैप्टर भी आपका एंड होता है। हाँ जी एवरीवन, अच्छा क्वेश्चंस हो गए ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और माइक्रोब्स वाले, यस और नो? यस मैम। ओके, इकोसिस्टम के स्टार्ट किए, नहीं, कब करने हैं क्वेश्चंस? आज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्टार्ट कर देंगे, मींस थर्सडे वाली क्लास में खत्म है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपका करके। आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना, मंडे वाली क्लास में, और फिर थर्सडे में एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट, तो इसीलिए इकोसिस्टम भी कंप्लीट करना है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन भी करना है, और माइक्रोब्स भी अभी डिस्कशन के लिए बचा हुआ है, राइट, डू इट वेरी क्विकली गाइस, इतना डिले नहीं चाहिए बच्चे। ओके वन, सो नाउ अब मैं फटाफट से पूछती चल जाऊंगी। हाँ जी, इसके बाद रिवीजन होगी बॉटनी की या फिर हमारी क्लास लगेगी फिजिक्स या केमिस्ट्री? कितना कोर्स रह गया फिजिक्स केमिस्ट्री का? अभी है, मॉडर्न तो बचा हुआ भी है। अच्छा, अभी मतलब सर ने कुछ टेंटेटिव बताया आपको? एनी टेंटेटिव डेट has been given? up to December. अप टू दिसंबर? दिसंबर तो किसी ने नहीं बोला होगा, नवंबर बोला होगा। मतलब कोर्स खत्म करने में या रिवीजन शुरू करने में? कोर्स खत्म कर दी। अप टू दिसंबर बोला सर ने? नहीं मैम, 8 नवंबर तक तो वे ऑप्टिक्स तक सारा करा देंगे, उसके बाद दिसंबर की स्टार्टिंग तक हो जाएगी मैम। अच्छा, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। देखो अभी जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपका बॉटनी का सिलेबस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे आपका बॉटनी का सिलेबस खत्म है, उसके बाद क्लासेस होंगी बॉटनी की, क्योंकि फिजिक्स वाले सर की भी और बाकी के बैचेस में क्लासेस होंगी, केमिस्ट्री की बाकी के बैचेस में क्लासेस होंगी, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट, तो क्लासेस मेरी ही लगेंगी। एंड अभी मैं चलो आपको बता देती हूँ, शायद सर ने आपको किसी में बताया हो, तीनों में से किसी ने, कि उन क्लासेस के अंदर वी आर गोइंग टू हैव द क्विज पोर्शन गोइंग ऑन, क्विज़ेस हम करने वाले हैं, आपके डाउट सबसे पहले 12th के, राइट, 2 क्लासेस आपके 12th के डाउट्स लूंगी मैं, के क्वेश्चन कराऊंगी, क्विज में जितने क्वेश्चंस हैं अपने बना के मैं आपको कराऊंगी, उसी टाइम विद इन अ क्लास वो क्विज होगी,
राइट, पोर्टल पे, एंड आई एम एबल टू सी योर मार्क्स एज वेल, राइट। एक इंटरेस्टिंग क्विज है, एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आई लेट यू डाउनलोड दैट, डाउनलोड कराऊंगी आप लोगों से, अभी नहीं, राइट, वो चीज़, बट नेक्स्ट वीक, राइट। और उसी क्विज के बाद हम 11th का रिकैप शुरू करेंगे, राइट, जो अभी तक एज सच मेरा प्लान है। अब आगे सर को ज़रूरत पड़ती है, सर क्लास लेते हैं, कैसे स्केड्यूल होता है आई डोंट नो, हाँ, बट ये है कि मेरी तरफ से क्लासेस तो होंगी, ठीक है, राइट। एंड आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत है, कोई है प्रॉब्लम, नो मैम। बिकॉज इट्स बीइंग और योर विश कि आपको रिवीजन क्लासेस चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा, चाहिए, अच्छा, सही है, बढ़िया है, फिर रखो मुझे भी बिजी, फिर आप लोग, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, राइट। चलो कोई नहीं, रिवीजन करेंगे, क्विज के तरीके से रिवीजन करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे इस बार रिवीजन, राइट। सो इसीलिए पहले एक बार ये खत्म कर लेते हैं, फिर आपका स्टार्ट करते हैं 11th और 12th। या फिर नहीं, चैप्टर्स अलग होंगे, मतलब वो मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगी, आपके AITS के हिसाब से करेंगे, जैसे AITS में आएगा ना उसके अकॉर्डिंग। NCERT में जैसे दे रखा है वैसे ही आएगा। हाँ, एंड कराऊंगी मैं NCERT से इस बार, NCERT पूरा अपलोड करूंगी यहाँ पर, NCERT से करेंगे, उसी में मैं पॉइंट्स ऐड कराती जाऊंगी रिवीजन में, ताकि NCERT जो पढ़ते नहीं हो ना वो पढ़ लोगे इस बहाने, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। माइक्रोब्स आज ही डिस्कस करेंगे क्या बेटा? माइक्रोब्स के डाउट्स आज ही डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स हो गया, आप तो आज डिस्कस कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रही हूँ माइक्रोब्स। मैम माइक्रोब्स और पॉपुलेशन के एक ही दिन कर लो, क्योंकि छोटे चैप्टर हैं दोनों के। ठीक है, जैसे आप किसी दिन। ठीक है, तो आप पॉपुलेशन, हाँ, तो ऐसा करो फिर, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और माइक्रोब्स खत्म करो बाय नेक्स्ट वीक मंडे तक, एंड विल हैव अ डाउट फर्स्ट, क्योंकि फिर इकोसिस्टम के भी डाउट्स करने हैं ना, उसके पैकेज के क्वेश्चंस करने हैं। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट फॉर द चैप्टर। हमने इकोसिस्टम को डिफाइन किया, इकोसिस्टम इन द टू वेज, आपको पता है ये सब चीजें, जस्ट एक बार गो थ्रू करा रही हूँ मैं इसमें, राइट। नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक हम किसे कहते हैं? दैट्स अ मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हो गया नॉर्मल। एंथ्रोपोजेनिक इज अ मैन मेड इकोसिस्टम जिसमें गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड इन सबको लेके चलते हैं, वेयर एग्रीकल्चर, रिमेंबर दिस वन, राइट, इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। सबसे बड़ा मैन मेड इकोसिस्टम है हमारे पास एग्रीकल्चर, व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट, राइट, इट्स द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। Now the characteristics of the anthropogenic ecosystem, if we will say, we differ from the natural, जो natural से differ करता है, right, उसको define करते हैं हम यहाँ पर anthropogenic ecosystem में, right। अब anthropogenic ecosystem और natural में क्या क्या difference है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, differences क्या क्या हमारे पास present है। So on that differences, बेटा, हम anthropogenic का मतलब होता है जो human अपने accordingly बना रहे हैं, right, human ने अपने accordingly सब कुछ set कर रखा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास system कैसे चलेगा। On that behalf, if we will say anthropogenic ecosystem is a self-regulatory mechanism. Work on the self-regulatory mechanism इसके अंदर absent होता है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप क्या लेके चलते हो एंथ्रोपोजेनिक में, राइट, कि आप ये नहीं कहोगे कि अगर मान लो, जैसे मैंने एग्रीकल्चर क्रॉप फील्ड में कहा कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो कोई प्लांट अपने आप ग्रो करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन नेचुरल में तो क्या है, नेचुरल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो एंथ्रोपोजेनिक में तो आप स्पेसिफिकली ग्रो करा रहे हो ना, आप अगर वीट की फार्म पे, राइट, ग्रो करा रहे हो, राइस की फार्म पे ग्रो करा रहे हो, तो आपने कहा मैम राइस की फार्म पे नाइट्रोजन कराने का जोला को ग्रो कराना है। लेकिन नेचुरल में ऐसा थोड़ी होता है, नेचुरल में तो नंबर ऑफ प्लांट्स आर बीइंग ग्रोइंग एंड दे हैव देयर ओन रेगुलेशन, उनका खुद का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलता है, राइट। वहीं पर आप फटाफट मुझे बताओ, अगर आप मैन मेड इकोसिस्टम लेके चलते हो तो क्या आप कम डाइवर्सिटी के साथ काम करना पसंद करते हो या ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ काम करना पसंद करते हो, राइट। जब आप मैन मेड बना ही रहे हो, अगर मैं एक एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ द मैन मेड, उसमें आप फिशेस वही रखते हो ना जो डिजायर होती है, ऐसे थोड़ी कि पूरे के पूरे पॉन्ड की फिशेस उठा के वहां पर रख दी जाती है एक्वेरियम में, राइट। इट्स बीइंग द वन जो वहां पर रह पाएंगे, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी एंथ्रोपोजेनिक की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स किसकी हो जाती है, नेचुरल की। नेक्स्ट, अगर एंथ्रोपोजेनिक के अंदर, तो सिंपल सा सबको पता होगा, अगर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के अंदर, राइट, इफ वी विल से इन एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स कम है, डाइवर्सिटी कम है, तो फूड चेन सिंपल चलेगी या कॉम्प्लेक्स फूड चेन होगी मेरे पास, राइट। आप ऑर्गेनिजम्स को एक सिंपल फूड चेन में अरेंज कर दोगे, फूड वेब तो रखोगे ही नहीं आप, राइट। तो यू विल से सिंपल फूड चेन विल बी देयर, जबकि कॉम्प्लेक्स फूड चेन, कॉम्प्लेक्स फूड वेब किसमें प्रेजेंट होती है हमारे पास, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। डिफरेंस बहुत बार आ जाता है, तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर और नेचुरल के बेसिस पे, राइट। और उसी अगर आप कोई भी सिस्टम मैनमेड करा तो उसका मेन काम है कि उससे प्रोडक्ट आपको ज्यादा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर हाई प्रोडक्टिविटी और यील्ड चाहते हो, जिसको आप रेगुलेट कर रहे हो कि मुझे ये तो किसी भी तरीके से चाहिए, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आप एंथ्रोपोजेनिक को कहोगे तो आप कहोगे वेरिएबल प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी कैन वेरी, राइट, वो वेरिएबल है हमारे पास, वेरी करेगा कि कितने अमाउंट में हमारे पास रिक्वायरमेंट है, राइट। न्यूट्रिएंट साइकिल अगर देखी जाए तो लिटिल न्यूट्रिएंट साइकिल मींस कम, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स कम है तो छोटी न्यूट्रिएंट साइकिल होगी, तो वो किसमें मिलेगी मुझे, इन द केस ऑफ द, राइट, एंथ्रोपोजेनिक, राइट। लेकिन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट साइकिल मुझे किसमें मिलेगी, इन द केस ऑफ द नेचुरल, राइट। क्लियर हो गया डिफरेंसेस अच्छे से एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल के, फाइन। ये छोटे छोटे से पॉइंट से ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड, तो आपको इतना ध्यान रखना है एग्रीकल्चर क्रॉपलैंड इज एन इकोसिस्टम, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, राइट, तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, राइट। नाउ नेक्स्ट वन बच्चा, 2-3 टर्म्स है यहाँ पर, जो कंक्लूडिंग टर्म्स है रादर, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, आई हैव जस्ट टेकन एन इकोसिस्टम एरिया, राइट, इसमें मैंने पूरा एक इकोसिस्टम एरिया लिया है, इस पूरे इकोसिस्टम एरिया के अंदर आई हैव टेकन नंबर ऑफ कम्युनिटी, इफ आई होप एवरीवन रिमेंबर, right, कि community is being the one which is a group of population residing in an ecosystem, right? Yes guys, and all the communities existing together forms the, right, वो क्या करते हैं हमारे पास इकोसिस्टम बनाते हैं, right, तो multiple communities which are being existing together, right, and which are interacting together, right, they are being forming the complete, वो किसको form कर रहे हैं हमारे पास, a complete ecosystem is being formed, right। अब हमने कहा community is being there, तो community अगर हमारे पास present है तो community हमारे पास community 1, 2, 3 अगर ये present है, right, तो हमने कहा community 1 is being the one जिसमें बहुत सारी population है, community 2 में बहुत सारी population है, community 3 में बहुत सारी population, तो वी कैन सिंपली से दैट दो कम्युनिटीज के बीच में इंटरमीडिएट पॉपुलेशन जो आती है, जो ट्रांजिएंट ओवरलैपिंग कम्युनिटी है दो बायोटिक कम्युनिटी के बीच में, उसे आप क्या नाम देते हो, इकोटोन, राइट, व्हाट वी नेम दैट एज द इकोटोन। तो अब हम ये कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत करना, राइट, ट्रांजिएंट और ओवरलैपिंग कम्युनिटी बिटवीन टू बायोटिक कम्युनिटी इज कॉल्ड एज इकोटोन, हम उसे डिफाइन करते हैं। जो ट्रांजिएंट कम्युनिटी है, जो ओवरलैपिंग कम्युनिटी है दो बायोटिक कम्युनिटी के बीच में, राइट, लेकिन वहीं पर अगर मैं लेके चलूं कि विद इन अ कम्युनिटी बहुत सारी पॉपुलेशन प्रेजेंट है जो जेनेटिकली स्टेबल्ड है, उन्हें हम इकोटाइप कहते हैं, और दो इकोटाइप के बीच में जो ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है उसे क्या नाम देते हो आप, इकोलाइन, right, तो the transient population between the two ecotype is called as the ecoline, उसको आप ecoline का नाम देते हो, right, तो we just recognize the same thing, हमने कहा दो communities के बीच में overlapping community को नाम क्या दे दिया मैंने, ecotone, और दो overlapping populations के बीच में transient population को नाम, transient ecotype को नाम क्या दे दिया मैंने, ecoline, राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक। एक कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशंस आर इंटरैक्टिंग वेदर इन द पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, हो सकता है न्यूट्रल तरीके से, हो सकता है पॉजिटिव तरीके से, हो सकता है नेगेटिव तरीके से पॉपुलेशन इंटरैक्ट कर रही होंगी उसके अंदर, और उसी के साथ साथ व्हेनेवर वी से, राइट, दैट इट्स, अब ये एक ग्रुप कीस्टोन स्पीशीज, अच्छे से, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं यही पढ़ाने वाली हूँ, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, दे आर द स्मॉल पॉपुलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो है बेटा जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ही कम है, स्मॉल पॉपुलेटेड ग्रुप है स्पीशीज का, जिसका मेन इन्फ्लुएंस, हैविंग द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन एंड हेल्थ पे है, स्ट्रक्चर डायनामिक्स पे, राइट, तो एक छोटा सा पॉपुलेटेड ग्रुप है स्पीशीज का जिसका मेजर इन्फ्लुएंस किस पे रहेगा, इकोसिस्टम की हेल्थ पे, स्ट्रक्चर पे और फंक्शन में। मतलब अगर आप इस ग्रुप को हटा दोगे ना, तो एक ग्रुप को हटाने की वजह से इकोसिस्टम का फंक्शन प्रॉपर रन नहीं कर सकता। यू हैव टू मेंटेन कि ये पूरी तरीके से और इकोसिस्टम में मेंटेन रहे, राइट, बेस्ड ऑन दिस, इसी के बेसिस पे आप कहोगे कि दे आर लेस पॉपुलेटेड इन नेचर बट दे आर प्लेइंग द मेजर रोल, लेस पॉपुलेटेड है लेकिन मेन रोल को प्ले कर रहे हैं, right, जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि इट इज गोइंग टू फॉलो दिस कंडीशन व्हिच आई स्टेट अबाउट द कंप्लीट कीस्टोन स्पीशीज। एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ? यस गाइस, अभी सबको समझ आ गया है अच्छे से? यस मैम। गुड, राइट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस, इसी के बाद अब आगे बढ़ते हैं इसमें, राइट, तो वी विल स्टेट अबाउट द कंप्लीट आपका यहाँ पर नेक्स्ट कीस्टोन स्पीशीज वगैरह के अलावा ऑल इकोटोन, इकोलाइन एंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अब लास्ट में ना एनसीईआरटी ने एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज व्हाट एक्चुअली, एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट गिवन है, एंड दिस एक्सपेरिमेंट स्टेट अबाउट द मॉनेटरी फील्ड एक्सपेरिमेंट। मॉनेटरी फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये डील कर रहा है कि अगर मुझे मान लो इकोसिस्टम सर्विसेज को कोई प्राइस टैग देना है, कोई वैल्यू देनी है, तो मैं कितनी वैल्यू दूंगी उन इकोसिस्टम सर्विसेज को। तो पहली चीज तो आती है इकोसिस्टम सर्विसेज होती क्या। हमने कहा आज एक हेल्दी इकोसिस्टम में हम रह रहे हैं,
जहाँ पर हर चीज अवेलेबल है, प्योरीफाइड एयर है, प्योरीफाइड वाटर है, राइट। उसी के बाद सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट साइकिल प्रॉपर चल रही है, बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मेंटेन्ड है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू नहीं करते। हम क्यों वैल्यू नहीं करते हेल्दी इकोसिस्टम की? बिकॉज वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट। आज मैं आपको कहूँ बेटा आपको राइट इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा, आपको इसके लिए फाइन है। लेट्स सपोज इफ वी विल से कि हाँ अगर हम आज कार्स वगैरह में देखा ना कितना ज्यादा, राइट, हमने कहा पोल्यूशन चेक नहीं होता, पोल्यूशन चेक का फाइन लगा दिया, तो पीपल आर डूइंग दैट, राइट, लोग कर रहे हैं उस चीज को। तो वो चीज क्या हो रही है हमारे पास, दिस इज व्हाट कि अगर हम किसी भी चीज पे प्राइस टैग लगा दे तो ह्यूमन वैल्यू करने लग जाता है। जब तक हम प्राइस टैग नहीं लगाते ह्यूमन वैल्यू नहीं करता। इसी वजह से इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हमारी इतनी ज्यादा डैमेज हो रही है, क्योंकि हमें उसकी कदर नहीं है, हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स नॉट द वन विच इज गिविंग अस एनी मॉनेटरी बेनिफिट एंड इट्स नॉट द वन विच इज टेकिंग आवर मॉनेटरी वैल्यूज, राइट। तो इसी वजह से रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने कहा कि अगर आप सारे इकोसिस्टम को काउंट अप करो ना, उसके मेंटेनेंस और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट कम आउट टू बी $33 trillion a year world has to invest in that. $33 trillion, which is twice the time of the total global national progress अगर देखा जाए, ओवरऑल वर्ल्ड का जीएनपी काउंट किया जाए तो उसके भी डबल है, राइट। इसका मतलब अगर हम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट देंगे तो जाके हम उस इकोसिस्टम सर्विसेज को मेंटेन कर पाएंगे जो नेचुरली फ्री में हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट नीड टू कंजर्व देम। इसीलिए क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ रहे हैं तो अब हमें ये पता चल रहा है, इसीलिए हमारे पास आज के टाइम में सबसे मेन नीड है कि हम इसको कंजर्व अच्छे से कर सकें, राइट। क्लियर एवरीवन? पॉइंट समझ आ गया अच्छे से, राइट। सो दिस इज वेयर वी वाइट विद द इकोसिस्टम। यहाँ आपका इकोसिस्टम का चैप्टर भी फिनिश होता है, राइट। तो आई होप एवरीवन इज बीइंग डन टिल हियर, राइट। हाँ जी बेटा, राइट, कंप्लीट हो गया अच्छे से। अच्छा, अब ध्यान रखना सक्सेशन के अंदर आपको हाइड्रैक और ज़रैक सक्सेशन का ऑर्डर, राइट, ऑर्डर बहुत अच्छे से याद रखना है इसमें, राइट। और उसी के साथ साथ आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर, राइट, कि क्या क्या हमारे पास बेसिकली उसमें गिवन है चीजें, राइट, क्या क्या इसके अंदर हमारे पास पूरा ऑर्गेनिजम्स के नाम प्लस आपका फूड चेन, फूड वेब, राइट, कौन सा होता है, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे वर्क कर रहा है, राइट, ये सारी चीजें इकोसिस्टम में अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट। अच्छा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू, फटाफट से बताओ जरा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। वेरी गुड, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब देखो यहाँ पर, राइट, ये हमारे पास था बेसिकली हाइड्रैक सक्सेशन, ये एनसीईआरटी का गिवन डायग्राम है प्राइमरी के लिए। अब बच्चे बहुत बार ना एक क्वेश्चन आ जाता है, यहीं पर एनसीईआरटी ने डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। ये प्राइमरी सक्सेशन लिख देने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रैक सक्सेशन इन अ पॉन्ड व्हिच इज फ्रेशली फॉर्म्ड, याद रहेगा ये पॉइंट, राइट। अब क्यों मैंने ऐसे बोला, because succession can also occur in an area which is natural aging of lake, remember everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Right. अगर हम कहते हैं eutrophication is being the aging of lake, तो aging of lake के टाइम पे हो क्या रहा है, what we are doing during that aging practice, उस aging practice के टाइम क्या हो रहा है, तो हमने कहा उस aging practice के टाइम स्पेसिफिकली आपका क्या बेसिकली एक प्रोसेस चल रहा है कि देयर इज बीइंग द वन, राइट, जहां पर हम ये डिफाइन करते हैं, राइट, कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रॉपर्ली, राइट, वहाँ वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, राइट। तो उस टाइम पे यूट्रोफिकेशन के टाइम पे भी धीरे धीरे वो लेक किसमें चेंज हो जाता है, लैंड एरिया में चेंज हो जाता है। जब वो लेक लैंड एरिया में धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है ना यूट्रोफिकेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली सक्सेशन कैन हैपन, उस टाइम भी सक्सेशन होता है। तो वो सक्सेशन कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? यस गाइस, इफ सक्सेशन इज हैपनिंग ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन इट्स अ प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी, Secondary. वेरी करेक्ट, इट्स गोइंग टू बी दी सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी तो सक्सेशन तो तब होगा ना जब हमारे पास फ्रेशली पे होगा, तो इसीलिए ये डायग्राम प्राइमरी का मींस एक फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कोई कंटामिनेशन नहीं है, राइट। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब हमने कहा यहाँ पर देखो, वी हैव टेकन द फाइटोप्लैंक्टन्स ओवर हियर, हमने इस एरिया में सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर पहली पाइनियर कम्युनिटी प्रेजेंट है फाइटोप्लैंक्टन, जहाँ पर बिल्कुल पॉन्ड आपको साफ दिख रहा है, कोई कंटामिनेशन नहीं, कुछ नहीं, फाइटोप्लैंक्टन बड़े आराम से ग्रो कर रहे हैं। उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो प्रेजेंट है, उसी के बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज है, देखो नीचे रूटेड है आपके, इसमें एग्जाम्पल याद रखना हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया,
ये मैंने सिर्फ दिखाया ताकि आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं इनके। हाइड्रोलाइन वेलिसनेरिया, राइट, जैसे सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, फिर प्लांट नीचे, अब ऐसा नहीं होगा सबमर्ज हट जाएंगे, वो हैं, कम हो गए नंबर, लेकिन ज्यादा नंबर किसके हो गए, फ्री फ्लोटिंग वालों के हो गए, राइट, तो सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग जाके। फिर उसके बाद इसमें अजोला एंड वुल्फिया, राइट, अजोला एंड वुल्फिया। फिर इमर्जेंट रूटेड प्लांट्स आ गए जिन्हें आपने रीड आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, जो प्लांट्स हमारे पास वाटर के एरिया में भी रह रहे हैं, स्वाम्पी एरिया में भी रह रहे हैं, और जो प्लांट हमारे पास बाहर एयर के अंदर भी प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, राइट। तो हमने कहा रीड स्वैम्प स्टेज, दैट इज टाइफा एंड सेगिटेरिया। फिर मार्श मेडो स्टेज आ गया, जहां पर लेवल ऑफ वाटर हमारे पास, राइट, बिकॉज ऑफ पर्कुलेटेड इन द सॉइल, पॉन्ड शैलो हो चुका है, तो उसे हमने मार्श मेडो स्टेज कह दिया, जंकस। फिर हमने यहाँ पर कह दिया श्रब स्टेज, जिसमें एल्नस का मेन नाम आ गया। एल्नस के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है हमने, क्या पढ़ा हुआ है एल्नस के बारे में? We heard about something related to Alnus. सोचो, एल्नस एंड कैजुरिना, शायद याद आ जाए किसी को भी, याद नहीं क्लास में? वेरी गुड, फ्रैंकिया, राइट, फ्रैंकिया, राइट, फ्रैंकिया में हमने पढ़ा था, दैट्स बीइंग द वन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एल्नस एंड कैजुरिना, राइट, दैट्स बीइंग द स्क्रब स्टेज। और फाइनली वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ the forest stage with us. अभी मैंने मेंशन किया सेगिटेरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ यूट्रोफिकेशन द नेचुरल वाटर बॉडी। अगर नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर सेगिटेरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि उस वाटर बॉडी का यूट्रोफिकेशन चल रहा है, राइट। तो सेगिटेरिया इज बीइंग डिफाइंड एज अ इंडिकेटर ऑफ द यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। कंप्लीट यहां तक का पॉइंट? यस गाइस, डन है? शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके एवरीवन। अच्छा, अब एक ना ये जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसमें बायोम्स के बारे में मैंने बता रखा है, एंड आई वांट एवरीवन कि वो बायोम्स का एक बार अच्छे से याद करके आएंगे, राइट, फॉर द कमिंग क्लास। एक बार पढ़ के आओगे बायोम का, ताकि मैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के जब डाउट लूंगी मंडे को, पैकेज आपके पास होगा, तभी मैं बायोम्स का आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है? आगे बढ़ जाए टॉपिक में। यस एवरीवन, okay guys, right, so starting with the biodiversity and conservation. अच्छा, इन चैप्टर्स में अब आपका मुझे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, राइट, मुझसे ज्यादा मुझे आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसके अंदर, ताकि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो, राइट। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, टेल मी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, फटाफट से मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जल्दी से। हाँ जी, क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं मिल रहा मुझे भाई? बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? Presence of different species of many organisms in a single area. ओके, उसके अलावा एनीवन एल्स? मेक एन अटेम्प्ट एवरीवन। Can I say biodiversity is defining the existence of multiple diverse group of organisms at an area? एक एरिया पे मल्टीपल डाइवर्स ग्रुप की एग्जिस्टेंस होना, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब अगर मैंने ये एक एरिया लिया, अ लार्ज एरिया, that is one, taking it as one of the type of the ecosystem, अगर मैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी देखती हूँ बेटा, इस लार्जर स्केल पे पढ़ती हूँ, it is called ecological diversity, right। बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के 3 लेवल्स हैं, right, they are the 3 levels of biodiversity, राइट। इकोलॉजिकल, जेनेटिक एंड स्पीशीज, बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना इस पार्ट को आज अच्छे से, राइट। तो हमने कहा हमारे पास सबसे पहला लेवल आया, दैट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द लार्ज एरिया पे जो पूरा ओवरऑल आप पढ़ोगे। अब इस पूरे बायोडाइवर्सिटी जोन के अंदर
आपने मल्टीपल कम्युनिटीज को बनाया, यू फॉर्म द मल्टीपल कम्युनिटीज. Now in this you have multiple population being surviving. Fine. अब हमने कहा अगर इस लार्ज एरिया की डाइवर्सिटी में देखें which is biodiversity, if I talk a diversity within the community, is called alpha diversity. Diversity in between the two communities. Fine. दो कम्युनिटीज के बीच में जो डाइवर्सिटी वो क्या हो गई, बीटा डाइवर्सिटी. लेट अस सपोज दिस इज बीइंग अ रीजन. ये इस एरिया 1 का रीजन 1 है. Complete diversity at a region over an area गामा डाइवर्सिटी. यस गाइस, अब मुझे ये बता दो ये तीनों किसके हैं. आर द सम अप ऑफ ऑल द थ्री. क्या मैं डिफरेंट गामा डाइवर्सिटीज को सम अप करूं तो मुझे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिल जाएगा. ट्रू और फॉल्स? Fine. If I sum up the all gamma diversity for an area, I am able to come up with the fact that the complete ecological diversity will be derived. Right, guys? Fine. So that is called as the ecological diversity. हम उसे define करते हैं. अब इसी ecological diversity में, right, अगर हम कहें बेटा, right, तो if I will simply ask you कि मेरे पास जितनी number of communities ज़्यादा होंगी, क्या उस area की ecological diversity उतनी ज़्यादा होगी? Right, अगर मैं इस first level को state करूँ, right, तो I can state the first level over here. देखो, फिर मैं level B पे जाऊँगी इसमें. इकोलॉजिकल डाइवर. अभी तो राइटिंग सबको समझ आ रही है? यस. ठीक है, तो पिछली बार पेन का इशू. यस मैम. न्यू पेन आ गया है मेरे पास, तो कोई इशू आएगा नहीं आपके पास. राइट, ओके. नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज द कम्युनिटी डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं. राइट, ये बेसिकली हमें क्या दिखाता है? वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स ओवर एन एरिया. राइट, बहुत सारे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स हमें पढ़ने हैं. राइट, एक एरिया में, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कंप्लीट कम्युनिटी डाइवर्सिटी वी विल से. राइट, सो इट्स टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स. वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स को पढ़ना. राइट, जिसमें आप क्या क्या पढ़ोगे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में. Are we able to study about diversity of ecological niche? Yes guys. अगर मेरे पास किसी एरिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है तो क्या उसमें मल्टीपल नीश भी प्रेजेंट होंगे? राइट, उसी के साथ साथ आपके मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स भी होंगे. ट्रॉफिक लेवल्स भी बहुत सारे होंगे, प्लस उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स फूड वेब भी होगी वहां पर. राइट, कॉम्प्लेक्स फूड वेब विल बी प्रेजेंट. राइट, फिर प्लस जो होंगे हमारे पास फंक्शंस भी कैसे हो जाएंगे? Can I say complex ecological functions?
दैट इज प्रोडक्टिविटी भी हाई, डिकम्पोजिशन भी हाई, न्यूट्रिएंट साइकिल भी एफिशिएंट हो गया, राइट। और उसी के साथ साथ आपके बाकी के जितने भी हमारे पास फंक्शंस है वो सब उसके क्या हो गए, एनहांस हो गए, राइट। तो इन सब के बारे में पढ़ना, राइट, उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। अब अगर मुझे ये बताओ कम्युनिटी डाइवर्सिटी ऑफ, अगर मैं पूछूं एक रीजन की डाइवर्सिटी क्या होगी, व्हाट्स अ रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी किसे कहूंगी मैं, रीजनल डाइवर्सिटी, यस, सिंपल है, सोचो थोड़ा सा, whom will you state regional diversity, गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, रीजन, एक रीजन में कह रहे हो ना, राइट। तो अगर एक रीजन में नाम दे रहे हो तो गामा डाइवर्सिटी को क्या लेके चलोगे, गामा डाइवर्सिटी इज कॉल्ड एज द रीजनल डाइवर्सिटी। अभी समझ आया, यस एवरीवन गॉट द पॉइंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, जिसे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट पे चलें, इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर, पहले इसी डायग्राम में बताती हूँ, चलो, राइट। अब एक एरिया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज, अगर मैंने ये पॉपुलेशन कहा तो इज दिस पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग स्पीशीज 1, क्या एक पॉपुलेशन एक स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा, यस एवरीवन, राइट। तो अब अगर हम कहें यहाँ पर सेकेंड लेवल विच इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होना एक एरिया के ऊपर, राइट, which is being regarded as the species diversity, which variety of the species within a region, right, उसको पढ़ना, that is called species diversity। तो हम एक एक करके लेवल को यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने कहा नंबर फर्स्ट इज बीइंग दी species diversity, स्टडी ऑफ मल्टीपल स्पीशीज इन एन एरिया, राइट। अच्छा, अब एक एरिया में अगर मुझे मल्टीपल स्पीशीज को स्टडी करना है तो मैं दो पैरामीटर्स पे करती हूँ, अंडर द टू पैरामीटर्स, वन इज कॉल्ड एज द स्पीशीज रिचनेस and another is called as the species evenness. Can anyone tell me the meaning of this species richness or species evenness? क्या समझ आ रहा है मुझे इससे? And product of species richness and species evenness, is called species diversity. हाँ जी, मुझे बताओ सबसे पहले, what's the meaning of the richness and evenness? स्पीशीज रिचनेस का मतलब होगा कि richness is number of बहुत- species present बहुत and evenness is number of individuals in a species. ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं ये कह सकती हूँ स्पीशीज जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, फाइन। Species evenness or species equitability is the proportionate number of the different species belonging to different taxonomic group. Means that, देखो ये A जोन है, ये B जोन है, ये दो रीजन मैंने लिए। अब बहुत ध्यान से सुनना है, इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे। If I will say हाँ जी, अब अगर मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करूँ, चलो मैं सारे ले लेती हूँ, 5 और 6, तो इसमें द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट ओवर एन एरिया इज कॉल्ड एज द स्पीशीज रिचनेस। कितनी रिचनेस हो गई? ए की, ए की भी 6, बी की भी 6, एम आई राइट? करेक्ट। अब हमने कहा इवननेस का क्या मतलब होता है, अब इसमें देखना ध्यान से।
where species evenness is there. हाँ जी, where evenness is there, A और B में से, then is the number of species, number of members of this species 1. क्या हो गया भाई? मैम एक बार शॉर्टली रिपीट कर दो, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैंने ये कहा बच्चे कि इस एक जोन मैंने एक रीजन ए लिया, एक रीजन मैंने बी लिया। अब अगर मैं ए रीजन में देखूं तो ए रीजन में मुझे 6 स्पीशीज मिल रही हैं, बी रीजन में मुझे 6 स्पीशीज मिल रही है, एंड एवरीवन आई थिंक रिमेंबर दैट वन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट वन स्पीशीज। Agreed everyone? Within a species, multiple number of organisms are being surviving. I say that even richness का मतलब हो गया कि कितनी number of species उस एरिया में, तो दोनों मुझे 6 मिली, तो richness मेरे पास 6 हो गई दोनों के लिए। Evenness का मतलब होता है कि जो आपने 6 दी, क्या वो equally distributed है या नहीं है, equitability है या नहीं है उनके बीच, proportion number same है या नहीं है, राइट। तो अब अगर मैं एरिया ए में देखूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं एरिया ए में देखूं तो एरिया ए में मुझे क्या मिलेगा कि स्पीशीज 1 तो 10 है, लेकिन स्पीशीज 2 2 3 1 4 3 5 में 5 मेंबर्स और 6 में 7 मेंबर्स, राइट। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ आफ्टर सम टाइम टी S2 और S3 तो शायद एलिमिनेट ही हो जाएंगे, यस और नो? यस मैम। राइट। तो क्या उसकी वजह से उसकी रिचनेस कम हो जाएगी? जो अभी तक आपको लग रहा है कि रिच है, क्या उसकी वजह से रिचनेस खत्म हो जाएगी उसकी? राइट। लेकिन अगर मैं यही चीज एरिया बी पे देखूं तो एरिया बी पे देखो, क्या मेरे पास कोई भी स्पीशी 5 से कम है? इज देयर एनीवन विद अ मेंबर लेस देन 5? नो। No, राइट। ma'am. S1 के 10, S2 के 8, S3 के 9, S5 के 7, S6 के 6, S4 के 7, तो मुझे सबके मेंबर क्या इक्वेशनल दिख रहे हैं, एक जैसे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, राइट। इसका मतलब अगर एक्सटिंक्शन मान लो बहुत साल लग जाएंगे इसकी रिचनेस को खत्म करने में, तो बेटर कौन सी, किसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे बेटर हुई, ए में या बी में? बी में। B में. बी। वेरी गुड। तो हमने कहा रिचनेस भले ही देखना जरूरी है, लेकिन रिचनेस के साथ क्या देखना जरूरी है? वी मस्ट हैव टू सी द इक्विटेबिलिटी, दैट इज द इवननेस। इवननेस का मतलब proportionate number of individuals of a species within an area. एक एरिया में कितने proportionate number present हैं, that signifies the species evenness or species equitability, right? अब अगर मैं एक पॉइंट और यहाँ पर आपको दूं, चलो मैं एक एग्जांपल से देती हूँ वाला पॉइंट, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट एक सेकेंड। ये मैंने आपको दिए 4 एरियाज, एवरीवन हैज टू सॉल्व दिस, राइट। स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको काउंट अप करनी है, किसमें कितनी होगी। म्यूट करो बेटा। ओके, नाउ ओवर हियर
Okay. Now tell me the highest species diversity region. B. Hmm? B. 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 Okay. All the people in class. Okay. राइट आपने कौन कौन सा पैरामीटर लिया इसके अंदर मैम रिचनेस बताने के लिए रिचनेस कह रही हूँ डाइवर्सिटी बताने के लिए मैम ए हो सकता है शायद। ओके फाइन मैम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी चूज। सबसे पहले आपने देखा स्पीशीज रिचनेस पहले मुझे अब ऑर्डर बताते जाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो जरा रिचनेस के बेसिस पे C first. फिर आ जाओ स्पीशीज इवननेस और फिर आ जाओ थर्ड पैरामीटर जब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपका नया हाँ जी टेल मी द पैरामीटर C. ठीक है मैम रिचनेस में सी रिचनेस में C B W A. सी के बाद इवननेस बी ए एंड डी कॉम्प्लेक्स फाइन ठीक है क्या मैं इसमें इक्वल का साइन बी और ए के बीच में लगा सकती हूँ Yes, ma'am. रिचनेस के बेसिस पे फाइन ठीक है Yes. अब इवननेस पे आ जाओ B equal to A. B A C A. बी C and D. A. उसके बाद A ए ए equal to B C. center. देखो ए इज इट इक्विवेलेंट टू सी नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट इवननेस के बेसिस पे ठीक है एंड देन ग्रेटर देन डी डी ठीक है अब कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आओ C. Cell complex. नाउ सी एवरीवन अब हम कैसे देखते हैं देखो हमने सबसे पहले सब बी है बी इज द हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स हमें एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है उस एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मान जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग ना करे इट कैन होल्ड मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अगर वो मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को होल्ड अप कर सकते हैं तो बताओ मुझे राइट इफ इट इज एबल टू होल्ड अप द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि दैट पर्टिकुलर एरिया इज गोइंग टू हैव ऑल द रिसोर्सेज व्हिच कैन सपोर्ट द डिफरेंट ग्रुप्स अगर मैं ए में देखूं तो ए में मुझे 4 मेंबर्स मिल रहे हैं 4 डिफरेंट स्पीशीज मिल रही हैं और चारों स्पीशीज मेरे पास वर्टिब्रेट से बिलोंग कर रही हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन से इट्स बीइंग करेक्ट ना राइट चारों स्पीशीज ma'am. आपकी उससे बिलोंग कर रही हैं वर्टिब्रेट से बी में मेरे पास चारों स्पीशीज की रिचनेस भी ज्यादा और प्रॉपर इवननेस भी मिल रही है लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है कि एक मेंबर 2 मेंबर इनवर्टिब्रेट के 2 मेंबर वर्टिब्रेट के इसका मतलब इसके पास ऐसा एनवायरनमेंट है जो हाइड्रा को भी सपोर्ट करेगा जो मॉलस्क को भी सपोर्ट करेगा जो फिश को भी सपोर्ट करेगा जो फ्रॉग को भी सपोर्ट कर रहा है राइट अब अगर मैं सी पे आऊं तो सी में मेरे पास है तो भले ही 5 लोग राइट और उसी के अंदर अगर देखा जाए तो इवननेस भी हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेट इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए लेकिन पांचों मेंबर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आर ऑफ द ऑल ऑफ देम बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप दैट इज वर्टिब्रेट सबके सब वर्टिब्रेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं वहां पर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती राइट और थर्ड वाला तो हट ही गया क्योंकि उसके अंदर पहली बात तो रिचनेस ही नहीं है जब रिचनेस नहीं है इवननेस नहीं है तो क्या ही फायदा है राइट तो ऑन दैट अकाउंट मैंने कहा पहले और उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी है भी तो भी क्या यूज है राइट तो उस बेसिस पे हमने कह दिया हमारे पास सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन हो गया दैट्स बी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन राइट तो हमने कह दिया यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर तो नहीं बना सकते हम इसके अंदर लेकिन बी को हम क्या कह सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स तो अब हम एक लाइन कहते हैं बेटा जो ध्यान रखना मैक्सिमम टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी अकर तब हम कहते हैं टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी होगा व्हेन स्पीशीज ऑफ टेक्सोनोमिकली डिफरेंट ग्रुप आर इक्विटेबली प्रेजेंट ओवर एन एरिया समझ आया पॉइंट राइट तो अब मैंने कहा ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी अब किस एरिया की ज्यादा हो गई B. स्पीशीज डाइवर्सिटी इज फॉर द एरिया बी बी की ज्यादा हो गई राइट तो हमने कहा more the taxonomic diversity of an area
जितनी ज्यादा टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी होगी उस एरिया की, मोर विल बी दी स्पीशीज डाइवर्सिटी बट मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, equitably scattered over an area. उस एरिया पे कैसा होगा, equitably scattered होगा. Right, everyone got this point now? पॉइंट सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पे. नाउ द थर्ड वन इज, अब देखो हमने क्या किया, अगर मैं एक ऑर्डर बनाऊं तो मैंने एक पूरे इकोसिस्टम लेवल पे देख लिया, दैट्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब स्पीशीज लेवल पे देख लिया, दैट्स अ स्पीशीज डाइवर्सिटी. थर्ड लेवल मेरे पास आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. राइट, अब पॉइंट आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है. तो देखो इसके अंदर अगर मैं इस एरिया में देखूं तो मैंने कहा ठीक है स्पीशीज रिचनेस जितनी थी वो, लेकिन एक स्पीशीज के अंदर क्या एक ही ग्रुप होता है या एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट वेराइटीज और सब स्पीशीज भी होती है. कैन बी पॉसिबल कि डिफरेंट वेराइटी और सब स्पीशीज होंगी. अब इस एक पॉपुलेशन के अंदर, ये अगर एक पॉपुलेशन है, डिफरेंट वेराइटीज और सब स्पीशीज ऑफ सिंगल स्पीशी, वो किसको डिफाइन करेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी. थर्ड वन. राइट, सो आर वी मूविंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल. सबसे हाईएस्ट कौन सा था हमारे पास, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फिर हम फाइनली किस पे आ गए, जेनेटिक डाइवर्सिटी. अभी समझ आया सबको पॉइंट? राइट, तो अब अगर हमने यहाँ स्टेट कर दिया, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल subspecies or variety of single species within its population. Within its population, उसी की पॉपुलेशन के अंदर एक सिंगल स्पीशीज की कितनी है हमारे पास, डिफाइंस जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ टेल मी गाइस, all the members belonging to a single species share a common gene pool or a different gene pool? क्या आएगा? All the organisms of a species, right, share a common gene pool or a different gene pool. किसको share करते हैं? All of them. Genes के हिसाब से क्या होता है हमारे पास? Common. Very good. Right, common gene pool. तो अब अगर मैंने कहा ये मेरे पास पॉपुलेशन 1 है, अब थोड़ा जेनेटिक्स याद करना. ये पॉपुलेशन 1 हमने लिया. इस पॉपुलेशन 1 में आई टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म ए में ए अलील ऑफ अ जीन, एक जीन का ए अलील है, तो क्या उसी जीन का दूसरा अलील हमारे पास इसके पास हो सकता है? Organism B will have A1 allele of gene 1, right? इसके पास हो सकता है A2 हो,
इसके पास A3 हो, इसके पास A हो, इसके पास वापस A1 हो. इज इट पॉसिबल ना? राइट. तो अगर मैं यहां पर कहूं जेनेटिक डाइवर्सिटी define allelic polymorphism at an area, is it fine or not? Allelic polymorphism, that is multiple type of alleles of gene of a gene. Right? Everyone got this thing? Fine. अच्छा, अब उसी के साथ more the genetic diversity, more specialized the ecotype is. Tell me that. एक्सप्लेन करो फटाफट से. मोर द जेनेटिक डाइवर्सिटी मोर स्पेशलाइज्ड द इकोटाइप इज. कैसे एक्सप्लेन करोगे इस लाइन को? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. यस एवरीवन, थिंक अबाउट इट. जितनी ज्यादा एक एरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्या उस एरिया में एक जीन के उतने ही डाइवर्स अलील्स प्रेजेंट हैं? और उन डाइवर्स अलील्स की वजह से जो भी अलील सेटअपली आपके जेनेटिकली स्टेबल होगा उतना स्पेशलाइज उसका इकोटाइप हो जाएगा. इकोटाइप इज मोर स्टेबलाइज, जितना ज्यादा आपका स्पेशलाइज हो जाएगा. सॉरी, क्योंकि इकोटाइप होता क्या? इकोटाइप इज जेनेटिकली स्टेबल्ड पॉपुलेशन ना, राइट. एंड उसी के साथ साथ if more the genetic diversity, more will be the niche specialization. Yes or no? जितनी ज्यादा आप जेनेटिक डाइवर्सिटी दोगे उतने ज्यादा नीश भी तो स्पेशलाइज कराओगे ना, राइट. क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? क्योंकि मोर द जेनेटिक डाइवर्सिटी मोर द वेराइटीज और सबस्पीशीज abundance in single species. समझ आ गया यहां तक का पॉइंट? Understood everyone? Yes guys, so genetic diversity, species diversity, ecological diversity, all the thing clear? Diversity के तीनों patterns clear हो गए. अब इसके example list up कर लें. NCERT given examples, NCERT वाले points बहुत अच्छे से याद करने हैं इसके अंदर, right, which are being here. Now see everyone, बहुत ध्यान से इसमें. A species might show high diversity at a genetic level over a distribution range. The genetic variation shown by the medicinal plant Ruvolfia vomitoria. नाम सुना है इसका? Human health and disease में I hope आज सबने सुना हो नाम. Ruvolfia vomitoria, और Ruvolfia का तो नाम specifically, right? It grows in the different Himalayan ranges, and from it one chemical is derived, which is called reserpine, right? तो basically इसमें क्या होता है हमारे पास कि जितनी अलग अलग species की varieties present हैं, right? वो सब differ करते हैं in the term of the potency, right? And concentration of the active chemical reserpine. जो reserpine एक main chemical है, उसके concentration में, right, और उसी के साथ साथ उसकी potency में they will differ, right, जो plant produce कर रहा है.
और इंडिया के पास मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन राइस के और 1000 वैरायटी मैंगो की है। और मैंगो की तो वैरायटी आप देखते हो ना, मैंगो की कितनी सारी वैरायटीज आती है समर में, राइट। वो सारी वैरायटीज जितनी मैंगो की होती है, दे ऑल हैव सिमिलर और यू कैन से somewhat different type of the or variable type of the traits होते हैं, otherwise है तो सब कुछ सेम ही ना उसमें, राइट। तो वी विल से दैट्स बीइंग द वन जो हमारे पास मेडिसिनल प्लांट और रुवोल्फिया का एग्जांपल, राइस का एग्जांपल, मैंगो का एग्जांपल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर सबसे मेन आता है हमारे पास, राइट, वेस्टर्न घाट नीट 2020 क्वेश्चन। Western Ghat have the greater amphibian diversity than that of the right Eastern Ghat. Eastern Ghat के comparatively Western Ghat के पास बहुत ज़्यादा amphibian diversity हमारे पास present है। Ecological diversity we will say like in the case of the आपका coral reefs हो गया, rain forest हो गया, desert हो गया, mangroves हो गया, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको diversity मिलेगी, that is called ecological diversity जो हम define करते हैं, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारे पास मैनेज करने में, लेकिन हमें इसको बेसिकली डैमेज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जिसकी वजह से हमें कंजर्वेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। अब उसी में ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एवरीवन कंप्लीटेड विद द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? यस गाइस, सबको क्लियर हो चुका है? हाँ जी, माइक है सबके पास? एल सबके पास टेलीग्राम तो है ही, तो आई कैन गेट अ रिस्पॉन्स इन बिटवीन। Yes, ma'am. गुड, राइट। नाउ द पॉइंट Yes, इज, ma'am. अब कितनी स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है और क्या है, बहुत सिंपल कंटेंट है बेटा, ध्यान से बस समझते जाना है, राइट। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको मेन डिटेल में कुछ जाना है, राइट। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004, राइट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स 2004 का डेटा है, अपडेटेड नहीं है, और आपको यही डेटा याद करना भी पड़ेगा बिकॉज राइट इट्स बीइंग द वन जो एक्चुअली नीड पूछ लेता है स्टेटमेंट्स में, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिस्क्राइब सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन से ज़्यादा ही है, राइट। और उसके हिसाब से एक बेसिकली थे बंदे कॉल्ड रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक साइंटिफिक एक सेट दिया था दैट 7 मिलियन स्पीशीज आर बीइंग देयर, राइट। लेकिन इसका क्या एग्जैक्ट एस्टिमेशन था वो ये भी नहीं दे पाए थे, राइट। तो इसी वजह से आज भी हम यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास एनिमल कहाँ ज़्यादा है, कहाँ प्लांट्स हैं, कहाँ पर एनिमल्स के और ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट। तो इन पे कंप्लीट स्टडी इज बीइंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ओके दिस इज हाउ, राइट, वी विल से द ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब अगर मैं अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को कंसिडर करती हूँ बेटा, तो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को कंसिडर करते टाइम वी विल टेक इन कंसिडरेशन, हम एक कंसिडरेशन में लेते हैं, राइट, ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सबसे कम इस वे में प्रेजेंट हैं, राइट। सो ऑन दैट अकाउंट इफ वी विल से, तो हमने कहा अर्थ पे बेसिकली हमारे पास कुछ डेटा है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ठीक है इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, राइट। तो अब छोटा सा एक बेसिकली ध्यान रखना, हम यहाँ पर कहते हैं एनिमल्स और प्लांट, अर्थ पे किसको ज्यादा होना चाहिए, एनिमल्स को या प्लांट्स को? यस एवरीवन, हु शुड बी मोर इन नंबर, एनिमल्स और प्लांट्स अकॉर्डिंग टू यू? थोड़ा लॉजिकली सोच के बताना। प्लांट्स, राइट। प्लांट्स को क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्यों ज्यादा होना चाहिए प्लांट्स को? Animals. ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्टिविटी? यस मैम। कैन आई से अगर जितने ज्यादा प्लांट्स Yes, होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा ना हमारे पास इकोसिस्टम, लेकिन वी गेट अमेज्ड टू नो दैट मेन स्पीशीज हमारे पास किसकी प्रेजेंट है, एनिमल्स की, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर राइट लेट्स लुक एट द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये कुछ बहुत अच्छे और डेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। सम ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स व्हिच आर बीइंग ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, मोर देन 70% ऑफ द ऑल द स्पीशीज रिकवर्ड आर द एनिमल्स, व्हाइल द प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई को भी इंक्लूड करके ब्रायो जिम्नो टेरिडो एनजीओ comprises no more than 22% of the total। ये फर्स्ट फैक्ट हो गया हमारे पास, ये पहला फैक्ट है, राइट, कि इसके पास इसके मेंबर्स जो हैं आपके 22% ही हैं, उससे ज़्यादा इवन भी नहीं है। अब पहला फैक्ट के बाद हमारे एनिमल्स में कौन सबसे ज़्यादा है, और ये आई होप सबको पता होगा एनिमल्स के अंदर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा, रिमेंबर एवरीवन। तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा हमारे पास प्रोपोर्शन किसका है, दैट्स बेसिकली बीइंग द इंसेक्ट्स हो गए हमारे पास। तो हमने कहा अमंग एनिमल्स सेकंड फैक्ट आ गया मेरे पास, राइट, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमी ग्रुप। देखो मैं एनसीईआरटी ही इसके लिए रीड करा रही हूँ कि एनसीईआरटी ही इसको पढ़नी है अच्छे से आपको इन चैप्टर्स के लिए, राइट। मेकिंग अप 70% ऑफ द टोटल, 70% ऑफ टोटल बना रहा है हमारे पास,
Right, so that's mean out of every 10 animal on this planet 7 are the insect. अब point ये आता है इतनी diversification insect की क्यों है, right? Why is so high diversification of the insect is present? Can anyone tell me, right? इतनी diversity हमने insect की क्यों दिया? What should be the reason behind it, right? क्या होना चाहिए इसके behind reason, right? Can I say they have the chitinous cuticle over the surface? ये तो आप पढ़ चुके हो ना, right? They have the chitin cuticle present over all around the body, right? Insects में अगर देखा जाए, right? तो जो अगर इनके पास chitinous cuticle पूरी body के around present है, जो इसका क्या बनाती है, इसका exoskeleton बनाती है. क्या उस exoskeleton की वजह से इसको strength मिलती है, protection मिलती है, loss of water से भी protection मिलती है, और उसी के साथ साथ they become, इसी main reason है, ये बहुत बार नींद में आ चुका है, what's the main reason? That's the presence of the protective exoskeleton which is on the body, right? They are highly widespread and can found everywhere on the land also, in the water also, and even in the air also, and the most successful animals, right? Why? Because it will provide the strength, right? Provide strength and protection to the body, provide strength and protection to the body, right? Provide a strength, prevent करता है इसको, prevention करता है इसकी, protection करता है किसी भी अटैक से, right? और strength भी provide करता है, right? तो दोनों facts सबको clear हो गए अच्छे से, right? Now again we'll say number of a third fact पे आते हैं, that is the fungi. Number of fungi in the world are more than the combined total of the species of fishes, amphibian, reptiles and the mammals. That's the third fact, right? और fungi की species का ज़्यादा होने का main reason that they are highly cosmopolitan in nature, right? Remember everyone, cosmopolitan in nature है हमारे पास fungi, they are found everywhere, that they need the warm, moist environment to grow. और ये एनवायरनमेंट हमें मोस्टली हर जगह मिल ही जाता है, इसकी वजह से हमें फंगस की पॉपुलेशन भी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है. तो ये 3 फैक्ट्स हो गए हमारे पास जो स्टेट करते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा. नाउ अब नेक्स्ट वन, ये 3 फ्लो चार्ट गिवन है, ये तीनों फ्लो चार्ट अच्छे से ध्यान रखने. देखो यहाँ पर इंसेक्ट का प्रपोर्शन सबसे मैक्स है, राइट? फिर उसके बाद आपका प्रपोर्शन है अदर एनिमल ग्रुप का, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड एनिमल ग्रुप हो गया, थर्ड मॉलस्क हो गया, फोर्थ क्रस्टेशियन हो गया. ऑर्डर याद रखना, कभी कभी पाई चार्ट में नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए आ जाता है, गेस करने के लिए. वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा जाए तो फिशेस जितने हैं उतने इक्वल आपके रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैं, राइट? तो बाकी सब ग्रुप्स उसके सम अप के इक्वल है, राइट? जहाँ पर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एंड फिशेस इक्वल टू देम, राइट? उनके कंपैरेटिवली, राइट? फिर हम अगर प्लांट्स पे आ जाए तो प्लांट्स में सबसे कम मेरे पास ग्रुप जो प्रेजेंट है, दैट्स फॉर दी, राइट, फॉर आपका यहाँ पर लाइकेन के अंदर लाइकेन का मेन ग्रुप प्रेजेंट है, एल्गी का मेन ग्रुप हमारे पास थोड़ा ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स, राइट? और एंजियोस्पर्म तो आप सब जानते ही हो, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आपके एंजियोस्पर्म्स ही हैं जो यहाँ पर मिलेंगे हमें, राइट? तो वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, राइट? तो वी विल से इन दिस ग्रुप हमने कहा यहाँ पर सबसे मेन हमारे पास कौन सा है, फंजाई. फंजाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एंजियोस्पर्म आल्सो, देन द थर्ड इज द एल्गी इज देयर, then mosses is there, then fern and alleles, and then lichen is there, right? This is basically there for the plants. हम plants के लिए refer करते हैं, right? Completed everyone? यहाँ तक का point सबको clear हो गया अच्छे से, right? Now अब हमने कहा, हमने देखो फंजाई की कैलकुलेशन कर ली, हमने प्लांट्स की कैलकुलेशन कर ली, हमने एनिमल्स की कैलकुलेशन कर ली, बट वी नेवर डू इट फॉर द प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का नहीं करते, राइट? नो सैम्पलिंग for prokaryotes and protists. इनकी सैम्पलिंग, राइट? वाई वी आर नॉट गोइंग टू डू द सच सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग इनकी क्यों नहीं कर पाते इतनी अच्छे से, राइट? वो इसी वजह से हम सैम्पलिंग इनकी नहीं कर पाते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, एंड रैंडम क्विक वेरिएशंस. आज आप कोई वैरायटी देख रहे हो, कुछ टाइम के बाद वो वेरिएबल वैरायटी आपकी उसको मिल जाएगी, इसी वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. कंप्लीट यहाँ तक का टास्क बेटा, राइट? हमने कहा biologists are not sure about how many prokaryotic species might there be, right? There, that the problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. Many species are simply non-culturable under the laboratory conditions, right? This is being the reason, right, कि हम इन्हें कल्चर नहीं कर सकते, cannot be grown in vitro.
और इन विट्रो ग्रो क्यों नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से वो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो इसी वजह से हमने कहा इस क्राइटेरिया के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 आइडेंटिफिकेशन मेथड चलाते हैं, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, इसके थ्रू हम सिर्फ ये फाइंड करते हैं कि इनकी डाइवर्सिटी मिलियंस में है, कितनी है ये भी अभी हमें नहीं पता है, बट वी गेट टू नो कि देयर डाइवर्सिटी आर इन मिलियंस व्हिच इज गोइंग टू बी फाउंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। क्लियर विद दिस? यस गाइस, तो अब आपने हम बायोडाइवर्सिटी का ये पार्ट किया। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, होल चैप्टर खत्म कर देंगे चैप्टर आपका, राइट। डिस्कशन वाला ही पूरा चैप्टर है, राइट। साथ साथ में एनसीईआरटी में ही नोट्स लिखती चली जाऊंगी, इसके आपको नोट अप करने हैं, राइट। तो रिवाइज टिल हियर एवरीवन, राइट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है सबका? यस गाइस, यस एवरीवन, कंप्लीटेड है यहाँ तक, राइट। तो ओनली गिव मी अ डे।